हमारे कंटीजेंट आ रहे हैं, हमारे मैडम की तरफ से उन लोगों को ट्रैक सूट बनियन और ट्रैक दिया है और उसी बटालियन का एक बटालियन के कलर के हिसाब से हर बटालियन का अलग कलर है, उसके हिसाब से पहला जो आ रहा है वो फर्स्ट बटालियन का कलर। అడిషనల్ కమాండెంట్ శ్రీ కె వీరయ్య సారథ్యంలో ఎండి జాఫర్, టీమ్ మేనేజర్ జై భర్తారెడ్డి కెప్టెన్ గా ఆర్ఎస్ఐ ఫస్ట్ బెటాలియన్ ప్రేక్షకులందరూ వారికి కరతాళ ధ్వనులతో వెరీ గుడ్ కమాన్ సెకండ్ బెటాలియన్ టీమ్ గౌరవ శ్రీ ఆర్ వేణుగోపాల్ కమాండెంట్, అడిషనల్ కమాండెంట్ శ్రీ ఎం జయరాజు గారి సారథ్యంలో अभी सेकंड बटालियन ये आदिलाबाद का है, सेकंड बटालियन కె కుటుంబరావు ఆర్ఐ డి జగదీష్ ఆర్ఎస్ఐ నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. థర్డ్ బెటాలియన్ గౌరవ శ్రీ సన్నీ కమాండెంట్, అడిషనల్ కమాండెంట్ పి వెంకటరమణ గారు సారథ్యంలో సిహెచ్ రాజయ్య ఆర్ఐ అంకిత్ ఆర్ఎస్ఐ నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. ये थर्ड बटालियन इब्राहिम पट्टनम में ये कार्रवाई कर रहा है, ये वहाँ पर रहते हैं, वहाँ से आए हैं मैच के लिए. ఫోర్త్ బెటాలియన్ గౌరవ శ్రీ డి శివప్రసాద్ రెడ్డి కమాండెంట్ గారి సారథ్యంలో వి పురుషోత్తమరెడ్డి ఆర్ఐ ఎం రవి ఆర్ఎస్ఐ నాయకత్వంలో ఫోర్త్ బెటాలియన్ కంటింజెంట్. ये जो फोर्थ बटालियन है इट फ्रॉम वरंगल, ये वरंगल का काकतिया का है, ये वहाँ के पूरा फोर्स है, फोर्थ बटालियन ये वहाँ से आए हैं. ఫిఫ్త్ బెటాలియన్ గౌరవనీయులు జస్కర్ చటర్జీ కమాండెంట్, అడిషనల్ కమాండెంట్ ఎన్ పెద్దబాబు సారథ్యంలో జి శ్రీ రాజు ఆర్ఐ పి సురేష్ ఆర్ఎస్ఐ నాయకత్వంలో ఫిఫ్త్ బెటాలియన్. సిక్స్త్ బెటాలియన్ ये గౌరవ फिफ्थ శ్రీ बटालियन उप्पलपल्ली भोपालपल्ली శ్రీ టివి రమణారెడ్డి కమాండెంట్ గారి సాక్ష్యంలో కె రామ్ బ్రహ్మ ఆర్ఐ కె రంజిత్ ఆర్ఎస్ఐ నాయకత్వంలో సిక్స్త్ బెటాలియన్. సెవెంత్ బెటాలియన్ గౌరవ శ్రీ ఎన్వి సత్య శ్రీనివాస్ కమాండెంట్ గారి సారథ్యంలో ఎం రాజు ఆర్ఐ టీమ్ మేనేజర్ టి సుమిత్ సింగ్ ఆర్ఎస్ఐ కెప్టెన్ నాయకత్వంలో సెవెంత్ బెటాలియన్. कौन से సెవెంత్ బెటాలియన్ గౌరవనీయులు ये भी सेवन बटालियन जो आपके सामने से जा रहा है, मन से गुजर रहा है, ये डीचपल्ली निजामाबाद. ఎయిత్ బెటాలియన్ గౌరవ శ్రీ పి మురళీకృష్ణ కమాండెంట్, అడిషనల్ కమాండెంట్ టి నరేంద్ర సింగ్, అడిషనల్ కమాండెంట్ గంగారాం గారి సారథ్యంలో వి రవీంద్ర టి క్రాంతి కుమార్ ఆర్ఎస్ఐ నాయకత్వంలో ఎయిత్ బెటాలియన్ కొండాపూర్. ये कोंडापुर आरा डिस्ट्रिक्ट में है, वो वहाँ के फोर्स है. 10th బెటాలియన్ శ్రీ రామ్ ప్రకాష్ కమాండెంట్ గారి నాయకత్వంలో ఏ గోపాల్ ఆర్ఐ సి శ్రీకాంత్ ఆర్ఎస్ఐ నాయకత్వంలో 10th బెటాలియన్ बीचपल्ली जोगलंबा, बीचपल्ली के हैं, ये वहाँ के आए हैं. 12th బెటాలియన్ శ్రీ గౌరవనీయులు ఎన్వి సాంబయ్య గారి కమాండెంట్ గారి సారథ్యంలో అడిషనల్ కమాండెంట్ బి రామకృష్ణ నాయకత్వంలో వై కృష్ణార్జునరావు ఆర్ఐ జె రాజు కెప్టెన్ ఆర్ఎస్ఐ నాయకత్వంలో 12th बटालियन ये अन्नेपर्ति नलगొండ. 13th బెటాలియన్ ఎం రామకృష్ణ కమాండెంట్ గారి సారథ్యంలో అడిషనల్ కమాండెంట్ ఎంఐ సురేష్ సారథ్యంలో వి శ్యామరావు ఆర్ఐ ఏ రవి ఆర్ఎస్ఐ నాయకత్వంలో 13th బెటాలియన్. 13 बटालियन गुड़ीपेट मंचिर्याल. 15th బెటాలియన్ ఇన్ఛార్జ్ కమాండెంట్ జములి భాష, అడిషనల్ కమాండెంట్ గారి సారథ్యంలో అడిషనల్ కమాండెంట్ ఏ అంజయ్య గారి నాయకత్వంలో పి నారాయణ ఆర్ఐ డి సాయి కుమార్ ఆర్ఎస్ఐ నాయకత్వంలో 15th బెటాలియన్. 15 बटालियन సత్తుపల్లి. 17th బెటాలియన్ కె సుబ్రహ్మణ్యం కమాండెంట్ గారి సారథ్యంలో పార్థసారథి ఏసీ గారు, శ్రీనివాస్ ఏ అశోక్ నాయకత్వంలో. చివరగా 17th బెటాలియన్ ప్రేక్షకులందరూ వారికి ధ్వనులతో ఆశీర్వాదం మనవి. సిరిసిల్ల 17 बटालियन. So we all are welcoming and requesting, very nice they are done.
बहुत ही बढ़िया, सबका टाइमिंग एक साथ था, बहुत ही बढ़िया। గౌరవనీయులు అర్జున్ డీజీపీ టీఎస్ఎస్పీ బటాలియన్ శ్రీమతి అభిలాష బిస్ ఐపీఎస్ వారిని వారి స్వాగత ఉపన్యాసం ఇవ్వవలసిందిగా మనవి. आपको और इनकरेज करने आऊँगा सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट. डीजी सर नहीं आ पाए क्योंकि उनका थोड़ा इंजरी हुई है एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ, सो ही वाज अनअवॉइडेबली डिटेन्ड. एंड ऑफ कोर्स हमारे एडीजी एलओ साहब तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, सो वी मस्ट थैंक हिम फॉर ग्रेसिंग दिस ओकेजन. I want to congratulate all of you, all the organizers, all the participants, all the officers, all the cooks, all the dhobis, barbers, everyone जिसने बटालियन में अपना फुल इंथुजियाज्म डाल करके यहाँ हमको एक मुकाम तक पहुँचाया है. नॉट ओनली ड्यूरिंग स्पोर्ट्स बट बाइफर्केशन के बाद जो बटालियंस ने एक डेवलपमेंट हुआ है पिछले 5-6 साल में, उसमें हमारी एकदम जो फोर्स है एकदम न्यू है. लास्ट 2 रिक्रूटमेंट्स में मैक्सिमम फोर्स है, 80-85% फोर्स हमारी लास्ट 2 रिक्रूटमेंट्स की है. एंड आई एम हैप्पी टू सी कि आप लोग भी नए, हमारे जो नया कल्चर है एक डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और एक एकदम बढ़िया शानदार अपना ड्यूटी देने का, वो आप स्पोर्ट्स में भी दिखा रहे हैं. सो कीप अप दिस ट्रेडिशन, मेक अ ट्रेडिशन, मेक द बटालियंस इवन बेटर. सो आई थैंक यू ऑल एंड कीप इट अप. Thank you so much for giving me this opportunity to speak, Mishra. Respected Shri Mohammad Mahmood Ali Saab, Home Minister for Telangana, Chief Guest for the function, Madam Abhilasha Bist, ADG Battalion, Mr. Siddiqui, DIG Battalion, Mr. Mishra, Commandant 1st Battalion, all senior officers of battalion, all the other officers to the lowest rank for battalions, their family members, their children, press and media, ladies and gentlemen, good evening. आज बहुत खुशी का दिन है कि जो तेलंगाना में बटालियंस ने फर्स्ट इंटर बटालियन स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट शुरू की, तेलंगाना बनने के बाद ये पहली बार ये मीट की जा रही है और आज उसका क्लोजिंग सेरेमनी है. इसका मतलब है कि बहुत सक्सेसफुली आज ये कंप्लीट हो जाएगी. किसी भी काम को पहली बार किया जाए तो डेफिनेटली इन्होंने अभी जो मार्च किया बहुत ही खूबसूरत था, देखने के लिए एक विजुअल ट्रीट की तरह लग रहा था. परफेक्ट कोऑर्डिनेशन था, एनर्जी थी, डिसिप्लिन था और सब लोग एक साथ आके थम किए, जो कि बिल्कुल देखने लायक था. मैं इसके लिए पूरे तेलंगाना स्पेशल पुलिस के ऑफिसर्स को, मैन को कांग्रेचुलेट करूंगा कि उन्होंने इतनी मेहनत करके ऐसा शो का प्रदर्शन किया. अभी आपने देखा कि जैसे सब मार्च के लिए आ रहे थे सभी बैचेस, उसी तरह बैंड का भी खूबसूरत शो था, बिल्कुल कलरफुल और बिल्कुल स्टाइलिश उनकी एंट्री थी और बहुत अच्छे से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया. अभी इसके बाद मुझे पता है कि पूरे प्रदर्शन भी है, वो हम लोग डेफिनेटली देखना चाहेंगे. मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये शुरुआत हो गई है इंटर बटालियन स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट की, तो आगे भी इसको इसी स्पिरिट से चलाया जाए और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए. थोड़ा ये किया जा सकता है कि अभी जैसे कुछ गर्मी में किया है तो थोड़ा हम लोग टाइमिंग थोड़ा चेंज कर सकते हैं, मंथ चेंज कर सकते हैं, मे बी थोड़ा मार्च में या फरवरी में कर सकते हैं या फिर थोड़ा जून के बाद कर सकते हैं.
जिससे थोड़ा सा स्ट्रेस कम रहेगा, लेकिन इसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए। मैं उसी सभी ऑफिसर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा जिन्होंने इस पूरे इवेंट में पार्टिसिपेट किया, बटालियन लेवल से अब स्टेट लेवल पर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन दिखाया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से पार्टिसिपेट करना और उसके बाद अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करना। जो इंडिविजुअल इवेंट्स हैं उसमें अपना प्रदर्शन करना और जो टीम इवेंट्स हैं उसमें टीम के साथ प्रदर्शन करना। सबसे जो खूबसूरत पार्ट है इसका, उसमें ये पता लगता है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। मतलब आप कभी कुछ गेम खेले या नहीं खेले, लेकिन अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको अपना पोटेंशियल पता लगता है। उसका मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि हम जब NPA में आए, नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए, तो हम तो इससे पहले कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, या क्रिकेट खेलते थे या बैडमिंटन खेलते थे। लेकिन वहाँ पर कुछ इवेंट्स कंपलसरी थे, जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल। मतलब ये कंपलसरी है, सबको खेलना ही है, देयर इज़ नो एग्जेम्पशन। कोई ऐसा नहीं कि बाहर बैठ सकता है। लेकिन हमने देखा कि जिसने कभी फुटबॉल खेला ही नहीं था, उसने सबसे ज़्यादा गोल मारे। तो इससे पता लगता है कि सबके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन उसको अपने पोटेंशियल का पता नहीं रहता। और जो बहुत सारे स्पोर्ट्समैन थे जो अपने आप को समझते थे 30 मार्क का, वो शायद उतने अच्छे नहीं प्रदर्शन कर पाए। तो इससे पता लगता है कि सब में पोटेंशियल है। अगर कोशिश की जाए, थोड़ी सी मेहनत की जाए और फोकस किया जाए तो हम लोग अच्छा कर सकते हैं। मैं इसी स्पिरिट के साथ सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे आने वाले इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूं कि ये फोर्स जो है हनुमान फोर्स है। तो सर, हमारे पास ये एक फोर्स, ऐसी फोर्स है, कोई भी क्राइसिस हो तो TSSP एक ऐसी फोर्स है जो मतलब पब्लिक में ज़रूरत हो तो ये सामने आती है। और सिर्फ क्राइसिस में ही हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, लेकिन आज तक का इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। कभी भी हमने TSSP को डिप्लॉय किया है तो बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। सर, स्टेट में ही नहीं कि उसके अलावा जब भी इलेक्शंस होते हैं या कोई मेजर लॉ एंड ऑर्डर इशू होता है तो हमारी फोर्स को भी बुलाया जाता है। और हमारी फोर्स अभी तक तेलंगाना बनने के बाद कई स्टेट्स में गई है, जैसे रिसेंटली यूपी में गई थी, उसके पहले MP में भी गई थी, उससे पहले ये कर्नाटक में भी एक बार गई थी, उड़ीसा में भी एक बार गई थी, पंजाब में भी एक बार गई थी। तो इस तरह से हमारी जो यूनिट्स गई हैं बाहर, उनमें भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, अपना काम अच्छे से निभाया और हमें एप्रिशिएशन मिली है। इसके लिए मैं ADG मैडम को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि वो TSSP को फ्रंट से लीड कर रही हैं और उसके साथ सारे जो ऑफिसर्स हैं, सारे कमांडेंट्स हैं, एडिशनल कमांडेंट्स हैं और असिस्टेंट कमांडेंट्स हैं, RIs, RSIs, कांस्टेबल ऑफिसर्स, हेड कांस्टेबल ऑफिसर्स, ASI ऑफिसर्स, सब लोग अपनी पूरी ताकत लगा के मेहनत करके और अपना तेलंगाना स्पेशल पुलिस का नाम रोशन कर रहे हैं। इस मौके पर मैं सभी लोगों को जो इन इवेंट्स में जीते हैं उनको बधाई देता हूं, जिन्होंने मेडल्स अर्जित किए हैं, और मैं उनको भी बधाई देता हूं जो पार्टिसिपेट किए हैं। और उनको मैं ये कहना चाहूँगा, और मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली वो लोग भी मेडल्स जीत सकते हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑफिसर TSSP फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए वंडरफुल शो एंड आई नो दे हैव वर्कड वेरी हार्ड एंड आई विल से कीप इट अप. Let us meet again next year. Thank you. Jai Hind. Shri Additional DG Law and Order and DG Prisons Shri Jitendra ji, Additional DG TSSP Srimati Abhilasha 5th Battalion,
మీ పేరు చెప్తే అంటే అందరూ చాలా హ్యాపీ ఉన్నారు सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे ऑफिसर इसी तरह होना चाहिए पॉपुलर ऑफिसर होना चाहिए ये कब हो सकते हैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं आज बहुत बिजी था और चूंकि आज छुट्टी का दिन होने की वजह से हमारा स्टाफ भी जो है टाल मटोल की बात कर रहा था जब मैडम का नाम आया कि आपकी बटालियन में यहाँ पर स्पोर्ट्स है तो मैं कहा ज़रूर मैं जाऊँगा आप कोई बताइए मगर मैं तो ज़रूर जाऊँगा इसलिए मुबारकबाद देता हूँ डीजी टीएसपी बटालियन हैदराबाद श्री MS सिद्दीकी साहब कमांडेंट फर्स्ट बटालियन श्री अनूप कुमार शर्मा साहब दिगर ऑल ऑफिसर्स गेस्ट मीडिया फ्रेंड्स स्पोर्ट्समैन लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम delegated to be here for the closing ceremony of first inter in Telangana State Special Police Battalion Sports and Game Meets 2022. Now with the personal efforts of the additional DG of Police TSSP Battalion Shrimati Abhilasha Bisht, the sports and games meet has been conducted from 23rd March to 9th April at 1st Battalion Isukoda and 8th Battalion Kondapur and 4th Battalion Warangal and other battalions. I am told that about 1,000 policemen, staff and officers from all battalions of Telangana have participated in this meet in various sports and games like volleyball, basketball, cricket, kabaddi, running, long and high jumping, tennis and badminton. I am happy to know that not only executive staff but also ministerial staff have participated in the sports meet. मैं एक बात कहते हुए बड़ी मुबारकबाद देता हूँ कि स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना अभी जितेंद्र साहब जिस तरह कहे कि जो लोग स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। मुझे इस बटालियन यहाँ आकर देखने पर आप भी एक प्रोग्राम रनिंग देखा हूँ मैं खुद ताजिब में रहा सेकंडों में 100 किलोमीटर का रन पार किया है। ये हमारे लिए प्राउड है। मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले रेवेन्यू मिनिस्टर का ओहदा दिया, बाद में होम मिनिस्टर का ओहदा दिया, मगर मुझे आज बड़ी खुशी होती है, मुझे प्राउड होता है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट पर और हमारे बटालियन में जितने हमारे ऑफिसर्स हैं और जितनी टीम है हमारी वो हमेशा तेलंगाना का नाम लेकर आई है। हमारी स्टेट छोड़कर जब बाहर भी जाते हैं अपनी ड्यूटी अदा करने के लिए तो जब वो वापस आते हैं तो लोग उन्हें याद रखते हैं तेलंगाना की बटालियन ने बहुत अच्छा काम किया। ये हुकूमत के लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे ऑनरेबल CM साहब ने तेलंगाना बनने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत इम्पोर्टेंस दिया। इसलिए दिया कि तेलंगाना बनने से पहले सब एक ही सवाल किया करते थे, तेलंगाना बनेगा तो लैंड ऑर्डर कैसा कंट्रोल किया जाएगा। आज हमारा तमाम पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से काम करते हुए इंडिया में आज हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम नंबर 1 पुलिस की तरह लिया जाता है। ये हमें प्राउड है। और हमारे ऑनरेबल CM साहब ने तेलंगाना बनने के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी तो पुलिस डिपार्टमेंट को दी। उन्होंने काफ़ी अच्छा बजट दिया और काफ़ी अच्छी तरीके से हमें ट्रेनिंग देने के लिए हर तरीके से जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होना चाहिए था वो दिया गया। और आज हमारी पुलिस के लिए ख़ास तौर से हमारी महिला बहुत खुश है क्योंकि पुलिस CM साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट में 33% कोटा वुमेंस का भी रखा है। शी टीम्स और भरोसा सेंटर हमारे लिए बहुत प्राउड है क्योंकि सारे स्टेट के लोग जब आते हैं तेलंगाना देखने के बाद, तेलंगाना में फिरने के बाद कोई लोग मुझसे भी मिलते हैं कि भाई होम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट चाहिए। जब मिलने के बाद मुझसे कहते हैं साहब हमारी स्टेट में रात के 10 बजे के बाद लेडीज़ को बाहर निकलना मुश्किल है और आपके पास तो ऐसा है रात के 12 बजे 10 तोले सोना पहनकर लेडीज़ हमारी स्कूटर पर बैठकर बाहर जाते हैं। इसकी वजह हमारी पुलिस की ऑनेस्टी और पुलिस की जुस्तजू, उनकी मेहनत का लगन का तरीका एक आज अवार्ड है हमारे लिए। हमारे CM साहब भी हमेशा पुलिस डिपार्टमेंट पर काफ़ी अच्छी तवज्जो देते हैं
आज जब भी हमारे सीएम साहब को फंड की ज़रूरत होती है, पुलिस डिपार्टमेंट को फर्स्ट फेज में फंड दिया जाता है और पुलिस ऑफिसर की वजह से हमारी स्टेट का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। आज जो इन्वेस्टमेंट हमारी स्टेट में आता है, सबसे पहले वो लोग एक ही चीज़ देखते हैं कि हमारी स्टेट का लैंड ऑर्डर कैसा है। जिस स्टेट का लैंड ऑर्डर अच्छा हो, वहाँ पर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आता है। आज इंडिया में नंबर 1 स्टेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो वो तेलंगाना स्टेट है। इसके लिए हमारे पुलिस ऑफिसर्स और पूरे बटालियन की टीम, हर जितने अहदेदार हैं हमारे, वो लोगों को दिल की गहराई से मैं मुबारकबाद देता हूँ। हमारा तेलंगाना स्टेट में जो CCTV कैमरे वो तकरीबन 9 लाख के अबाव 9,03,9,003 कैमरे हमारे पास लगे हैं जो काम कर रहे हैं। मैं हमारे डिपार्टमेंट के अहदेदारों से कि उसके मेंटेनेंस के बारे में कहता हूँ, अच्छे से अच्छा मेंटेनेंस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत से ऑफिसर्स हैं। और ख़ास तौर से स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना बहुत अच्छी बात है। जो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता है वो हमेशा एक्टिव रहता है। और मैं दिल की गहराई से तमाम हमारे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तमाम बटालियन के लोगों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास तौर से आई ऑल्सो अप्रिशिएट द एडिशनल DG TSSP battalions and other officers for making this meet a grand success. उसी तरह यकीनन जो लोग स्पोर्ट्स में हिस्सा ज़्यादा लेते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जितेंद्र साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है कि बचपन में एक स्पोर्ट्स में हिस्सा लिए दूसरे स्पोर्ट्स में नहीं लिए, पर जब यहाँ प्रैक्टिकल आते हैं तो कभी नहीं खेलने वाले भी फर्स्ट रैंक पर जाते हैं। उसके लिए मैं इस बटालियन के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। हमेशा हम इसी तरह हम एक्टिव रहेंगे और स्पोर्ट्स चलते रहेंगे। इस साल नहीं, आइंदा साल और भी इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। और तमाम जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और मुझे यकीनन पुलिस डिपार्टमेंट में मुझे मिनिस्ट्री मिलने पर हमारे पुलिस ऑफिसर से जब मिलता हूँ तो बड़ा प्यार से मिलते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं और फ्रेंडली पुलिस हमारी। स्पोर्ट्समैन भी फ्रेंडली होता है, जो स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं वो यकीनन फ्रेंडली होते हैं। आज पुलिस भी फ्रेंडली काम कर रही है। स्पोर्ट्स की वजह से बहुत आदमी एक्टिव रहता है, हमेशा फुर्ती में रहता है, तेज़ी में रहता है, बॉडी का मेंटेनेंस बहुत अच्छा रहता है। उसके लिए दिल की गहराई से मैं मुबारकबाद देता हूँ। और खास तौर से श्रीमती अभिलाषा पेस्ट साहिबा को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ आकर एक पॉलिटिकल लीडर बात जगह बहुत पॉपुलर होता है, यहाँ हमारी एडिशनल DG अभिलाषा बस बहुत पॉपुलर है। इनका जब नाम लेते हैं तो आप लोग बहुत नारे लगा कर ये बात की तस्दीक करते हैं। वो बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, आपके साथ फ्रेंडली रहते हैं, बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। मेरी जानिब से हुकूमत की जानिब से आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। जय तेलंगाना, जय हिंद। थैंक यू।
on the stage, Shri MD Mahmood Ali, Home Minister of Telangana, sir. Shri Dr. Jitendra sir, IPS Additional DG Law and Order and HFAC, Director General Prisons, Telangana. Srimati Abhilasha Bist, IPS Additional DGP TSSB Battalions and Director FSL. Shri MS Siddiqui, DIG TSSB Battalions, and all other senior officers who are witnessing this ceremony. Respected dignitaries, sir, I take a great opportunity on the Memorial Day first for the vote of thanks for making this event a grand success. On the onset, I would like to thank the Honorable Home Minister of Telangana State, Sri MD Mahmood Ali sir, for sparing a valuable time despite of a busy schedule for his inspiring words and never fails to motivate us. We are very thankful to you, sir, on this. अभी मैडम बताए कि साहब हमने होम मिनिस्टर साहब बताए कि मैडम बुलाए तो साहब कैसा भी आना बोल के आए, तो मैं मैडम को बोला साहब नहीं आ रहे पहले, तो बाद में मैडम को बोले नहीं मिश्रा कैंसिल करो, 9 तारीख जान दो, 10 को जान दो, 11 को जान दो, साहब को लाना ही तो इसके लिए 6 क्लास तो फिर साहब से जाके इल्तजा किया कि सर आप कैसा भी आना है, हमारा फंक्शन है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट का है, तेलंगाना पुलिस में TSSP इज अ मेन रोल, जैसे आपने एडिशनल DGP सर बताया लाना साहब कि मेन रोल रहता अंजलि पूरे हनुमान जी है हम लोग हर फोर्स के लिए। जैसे कि रिसेंटली कोरोना बहुत बड़ा पेंडेमिक आया, गांधी हॉस्पिटल हर हॉस्पिटल से पुलिस वाले भाग गए, लेकिन हमारे वाले जाके पूरा हॉस्पिटल्स में ठहर के ड्यूटी करें सर, हर हॉस्पिटल में ठहर के बगैर डरे कंप्लीट किया, पूरा तरीके से काम किया सर। और वी आर वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर श्री जितेंद्र सर, IPS एडिशनल DG लैंडर सर, फॉर who guided with his special advisors to Telangana police success, all events and maintaining a peaceful law order in the state. जब भी होम मिनिस्टर साहब बताया कि यहाँ पर रात के 11 बजे 12 बजे में लेडीज जाते हैं तो सोना वोना पहन के कुछ नहीं होता, तो इसका सब क्रेडिट जाता है हमारे DGP साहब महेंद्र रेड्डी साहब को एंड लायन जितेंद्र सर को, क्योंकि साहब लोग ही कंटिन्यू पूरा विजिल लगाकर हर फोर्स को तैनात करते हैं, अपना काम कराते हैं। I owe the great amount of the gratitude on the Srimati Abhilasha Bist, Additional DGP TSSB Battalion. Now I want to change the words. I got the great amount of gratitude, Srimati Abhilasha Bist, the mother of the battalion. क्योंकि she giving a guidelines and advices to the Telangana Special Police in her period, nearly 5.5 years, so many developments and huge promotion to the TSSB battalion, which was stagnated since 12 years or 20 years I think. 20 साल से जो प्रमोशन बनते हैं मैडम आने के बाद उससे भी 2000 के ऊपर प्रमोशन दिए सर, इट्स नॉट ए जोक, ये हो ही नहीं सकता। वेरी ग्रेट सर। In the last inter battalion sports meet was done in the 2012, nearly 10 years के बाद madam has taken a first step and given an interest to do this sports meet. On the pandemic was there, but we have done the sports meet in the battalion. Laterally we are inter battalion, so we are very thankful to sir. And also I take the opportunity to thank our DIG Sri MS Siddiqui for his great support in always backing up to the TSSB men and playing a key role in the guidance of. I thank to the Sports Authority of Telangana, SAT, to sending a 19 referees for the conducting a peaceful sports event, press, media, electronic media, and Srinivas, who is doing a live streaming for this program. We are very thankful to all the family members who came here and doing a very appreciation for our team. Thank you. Thanks commandants, additional commandant of TSS battalion, officers and men that participate in the sports 2022. Congratulating to the winners and runners of this sports 22. All the officers, very one. Thanks each and where. Thank you. Thanks a lot.
ఆఫీసర్ సిబ్బంది కూర్చోవాలనుంది. వై రవీందర్ ఆర్ఐ బృందం, ఆర్ఎస్ఐ రమేష్ రెడ్డి, ప్రశాంత్, రంగనాథ్ అండ్ వరుణ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ బెటాలియన్. మనిషి శక్తిని కొత్త పుస్తకాలు దొరికించడంలో మనోరంజకమైనటువంటి సాధనం క్రీడలు. ఆశ నిరాశల మధ్య భావోద్వేగాలు అదుపు చేసే సాధనం ఆటలు. గెలుపు నుండి ఆనందాన్ని ఆస్వాదించడం నేర్పితే ఓటమి నుండి గెలుపుకు పాఠము నేర్పించేవి క్రీడలు. ఆలోచనలు పంచుకోవడం, భావాలను నింపుకోవడం సాధనం ఆటలు. శారీరక దృఢత్వానికి మానసిక